Hello, bachcho. Let us read the question first. The question is a particle has an angular speed of 3 radian per second and the axis of rotation passes through the points 1 comma 1 comma 2 and 1 comma 2 comma minus 2. Find the velocity of the particle at point p 3 comma 6 comma 4. So before solving this, we'll write the key concept first and we need to understand that. So the key concept is that the formula that we are going to use. We know that velocity is vector quantity and vector distance is also vector quantity, and the omega, or we can say the angular velocity is also a vector quantity. And so we need to understand the vector scalar multiplication. Okay, so suppose हमारे पास कोई a1 I कैप दिया हुआ है, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और कोई वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर बी i1 कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. So these vectors are given. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट, suppose we have to find out the cross product of these two vectors. So what we'll do here, so I j k first we'll write this and then we'll note down these all values a1 a2 and a3, here b1 b2 and b3, and after that we'll solve. Okay, so this is the method by which we can solve the any scalar product, or we can say the cross multiplication of the two vectors. Okay, so first of all we have values. मान लेते हैं ओ ए पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस 1,1. तो इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्मेट में? तो वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? आई हो जाएगा आई प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और ओ बी वेक्टर, या वी कैन से इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो उसके पहले मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा था हमारे पास और ये कोई पॉइंट ओ है. तो इस पॉइंट की लोकेशन रही होगी पहले ए, मान लेते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ. तो इसकी लोकेशन कोई रही होगी 1,1,1,2. अब इसकी रोटेशन के बाद इसकी नई लोकेशन बन जाती है, मान लेते हैं बी, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2,-2. तो अब ये बोला जा रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट दिस 3,6,4. तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ओ बी वेक्टर. तो ओ बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ओ बी वेक्टर हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. ओ ए को हम क्या लिखते हैं? ओ माइनस ए माइनस ओ, सॉरी, इट विल बी ए माइनस ओ हो जाएगा. तो हमने क्या किया है, इधर वेक्टर ओ माइनस वेक्टर ए कर दिया है. सिमिलरली यहाँ भी वैसे किया है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ. और वेक्टर ओ तो हम जानते ही हैं, जीरो वेक्टर है, और वी कैन से जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप होता है ये. और वी कैन से द जीरो पॉइंट है, 0,0,0. इट्स नॉट वेक्टर, इट्स अ पॉइंट. So we can say 0,0,0. Okay, so this is the point O. So now we'll calculate the vector OA and vector OB. So now we can calculate the value of AB vector. Okay, so we'll join these two end and we can calculate the AB vector. So what will be the value of AB vector? So here we'll write the value of AB vector as OB vector minus OA vector. So this is the method by which we can subtract the two vectors and then we'll get the resultant vector. Okay. So suppose we have a vector I plus 2j vector and minus 2k vector, and we have to subtract this from the vector OA minus I plus j plus 2k cap. So after subtracting, what we'll get here? So we'll get the value of AB vector as vector j minus 4k vector. Okay. So finally we have value of AB vector. So suppose we have to find out the mod of this vector. So what we'll get here? So we'll get the 1 plus 4 square. What we'll get here? 17. Okay.
So we can find out the value of AB vector as AB unit vector as AB vector by mod of AB. So this is the method by which we calculate the unit vector. So we have already AB vector, that is equal to vector j cap minus 4k cap by, and we know the value of mod AB, that will be equal to under root 17. So this is the value of AB unit vector. So similarly, by same process we can calculate the value of AP vector as well. सेम प्रोसेस फॉलो करके हम एपी वेक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लीजिए एपी वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर. तो हम जानते हैं ऑलरेडी ओपी वेक्टर निकाल सकते हैं यहाँ से, पी हमें ऑलरेडी गिवन था. तो हम क्या बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर कैसे हो जाएगा, 3i हो जाएगा प्लस 6j हो जाएगा और क्या होगा प्लस 4k हो जाएगा. ओके, और हमें माइनस करना होगा ओए वेक्टर को. तो ओए वेक्टर क्या था हमारे पास, ये था. तो ओए वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2i कैप और क्या मिल जाएगा प्लस 5j कैप और क्या मिल जाएगा इधर प्लस 2k कैप. This is the value of AP vector. Okay, so now we'll calculate. So we have the unit vector of AB. It means that we have the direction. तो a यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमेशा एक डायरेक्शन बताती है. अब यदि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उस डायरेक्शन में, मान लीजिए ए बी की डायरेक्शन में क्या दे देगा, वो वेक्टर दे देता है, वो वेक्टर की वैल्यू दे देती है. तो सपोज मान लेते हैं अब हमें ओमेगा ओमेगा वेक्टर ओमेगा वेक्टर निकालना हो, तो ओमेगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 3 रेडियन, बट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें हमें चाहिए ए बी के डायरेक्शन में. तो क्या करेंगे, ए बी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, 3/j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर बाई रूट 17. सो हम क्या बोल सकते हैं, हम ओमेगा वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया. कैसे, फर्स्ट विल राइट, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हो ए वेक्टर, और यदि बोला जाए कि बी वेक्टर ए फाइंड आउट करना है और जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए वेक्टर ए दिया गया हो, और यह किस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी के डायरेक्शन में. तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी की यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाता है. तो फाइनली हम बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये एक वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी. सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड हियर. ओके, तो हमने डायरेक्शन पता था, ए बी की डायरेक्शन में हमने क्या किया, ओमेगा को कैलकुलेट कर लिया. सो फाइनली वी कैन से वी हैव वैल्यू ऑफ omega vector. So let's put up this all into formula. So omega into cross vector. So omega की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिला है 3j कैप मल्टीप्लाई कर देते हैं 12k कैप बाई रूट 70 मिल गया. अब क्रॉस लेना है किसके साथ, आर वेक्टर के साथ. आर वेक्टर क्या है, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें रोटेट करना था, वेलोसिटी निकालनी थी पॉइंट की, तो किस डायरेक्शन में निकालनी थी, एपी पॉइंट में, एपी डायरेक्शन में. तो एपी डायरेक्शन की वैल्यू है क्या, 2i कैप 5j कैप प्लस 2k कैप. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज, दिस डायरेक्शन. ओके, सो लेट्स पुट अप द वैल्यू ऑफ आर हियर, दैट इज इक्वल टू एपी. तो 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप. अब हम क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं रूट 17 को. अब इन दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया अभी कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला. ओके, सो लेट्स पुट अप दिस ऑल वैल्यू इनटू द फार्मूला. तो मान लीजिए आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो गया. पहले में देखा जाए आई का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, यानी 0. जे का कोफिशिएंट 3,
के का कोफिशिएंट -12 -12। सो आगे देखते हैं। और 2 5 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 5 2। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें क्या मिल जाएगा आई वेक्टर आई कैप, ये 6 प्लस क्या हो जाएगा ये 60 माइनस जे कैप, और ये तो माइनस हो जाएगा, और 12 दूना 24, ये +24 हो जाएगा, प्लस के कैप। इधर क्या आ जाएगा के कैप की वैल्यू -6। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 66 आई कैप -24, ये जे कैप होगा, जे कैप है तो 4 जे कैप -6 के कैप, और इसके साथ हमारा था 1/√17। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/√17। ओके, अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सो 3/√17, यहाँ क्या बचेगा 22 आई कैप माइनस 3 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 8 जे कैप, और ये क्या बचेगा 2 के कैप। So finally we have this answer. So this is the value of vector B. This all is the value of vector B. So hope you understood it well. Best of luck.